نیلم پتہ ہے میں مارکیٹ گیا تھا اور میری بیٹی کی فرینڈ کا برتھ ڈے تھا. اوکے. تو اس کے لیے میں بکس لے رہا تھا اپنے, میرے دوست لوگ بھی تھے, 2-4 لوگ بھی ساتھ میں گئے تھے. تو وہ لوگ بولنے لگے کہ برتھ ڈے گفٹ کوئی بک دیتا ہے کیا آج کے دور میں, کیونکہ آپ ٹوائز دے دو, کپڑے دے دو, بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ یار اب تو یہ دور ہی ختم ہو گیا کہ آپ کسی کو بکس آپ گفٹ ہی نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ لوگ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ پڑھائی لکھائی کا جو چلن تھا وہ ختم ہو چکا ہے پورا. پڑھائی لکھائی کا چلن بھی. اینڈ ساجد آئی فیل دیر واز اے ٹائم جب اسٹوری ٹیلنگ, اسٹوری بکس بچوں کو ریڈ کرنا وہ ایک الگ ہی زمانہ ہوا کرتا تھا. لائک اگر میں اپنے بچپنے کی طرف نظر ڈالوں تو میری ممی اسٹوری بک لے کر مجھے اسٹوری سنایا کرتی تھی. بالکل. تو بہت انٹرسٹ بھی بلڈ اپ ہوتا تھا پڑھنے میں. لیکن اب تو اگر بکس نکالو گے تو بچے ہی بھاگ جائیں گے. بچے تو چھوڑو, اگر آپ کسی کو ایسے ہی, میں اپنے فرینڈ کو اگر بک دوں گفٹ کریں گے تو بولے گا کتنے پرانے تھاٹ کا ہے یار یہ. ایگزیکٹلی, ہاں کوئی یوز نہیں ہے بکس کا. تو میرے خیال سے جو چلن دیکھا جا رہا ہے, چل رہا ہے, اس سے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول خراب ہونے والا ہے. ماحول خراب بھی ہونے والا ہے, اور یہ جاننا اور ویورز کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ریڈنگ امپورٹنٹ کیوں ہے. اوکے, تو میرے خیال سے آج ہم لوگ اسما میم سے اسی ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. اوکے, تو جی ہاں ناظرین تیار ہو جائیے, آج بہت ہی اہم مدعے پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں. کیونکہ زمانہ جتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور جتنی تیزی سے ہم لوگ دوڑ لگا رہے ہیں زمانے کے ساتھ, اس میں کہیں نہ کہیں ہم پڑھنے کو بھول چکے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں اس موضوع پر. آج اسما میم موجود ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ساجد, کیسی ہیں آپ؟ گڈ. وعلیکم السلام میم. جیسا کہ میں ابھی نیلم سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں گفٹ خریدنے گیا تو بکس اگر لے رہا ہوں تو ان لوگوں کو بہت دقت تھی کہ کسی کو آپ بکس کیسے گفٹ کر سکتے ہو. جو پہلے کا طریقہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے بھی محسوس کیا اس چیز کو؟ بالکل. پڑھائی سے, پڑھائی ایز این اکیڈمک پڑھائی نہیں, مگر دا ہیبٹ آف ریڈنگ تو ختم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ بہت الارمنگ ریٹ پہ ڈاؤن ہل جا رہی ہے. ہماری کنٹری میں اسپیشلی ویسے ہی کم تھا. اگر آپ دیکھیں تو نہ اسکولز میں لائبریریز ہیں, بہت بڑے بڑے اسکولز میں لائبریریز نہیں ہیں, بالکل اچھے اسکولز میں لائبریریز نہیں ہیں. اور جتنا ویسٹرن کنٹریز میں ہر نیبرہڈ میں لائبریری ہے. میں جب امریکہ گئی تھی تو ہم جس نیبرہڈ میں رہتے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا چڑیا کا گھر جیسے نہیں ہوتا, اس طرح انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا. اس کے اندر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بورو اے بک لینڈ اے بک. تو اس کے اندر لوگ جو اچھی اچھی کتابیں پڑھ چکے ہوتے تھے, جن سے ان کا دل بھر جاتا تھا, وہ اپنی کتاب اس کے اندر چھوڑ دیتے تھے اور کوئی بھی اسے آ کے پک کر لے. اور جس نے جو کتاب ختم کری وہ اس کے اندر رکھ دو. تو جس کا دل چاہا, جس کو جو بک اچھی لگی وہ اپنے لیے لے گئے, اپنی کوئی کتاب اس کے اندر چھوڑ گئے. تو ایون آئی تھنک ایون ان اے نیبرہڈ جہاں آپ ایک یہ کلچر ہے کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, نیبرہڈز میں چھوٹی چھوٹی چلڈرنز لائبریریز ہیں جہاں پر پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, لائبریریز لے کر جاتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. وہاں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, الگ الگ موضوع پر بات چیت ہوتی ہے, تو بچے کتابوں سے جڑے رہتے ہیں. وہیں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کتابوں کا نام وہی نا, گفٹ بھی اگر ہم دے رہے ہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں, یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے. اور لائبریری تو کہیں ملی تو ملی, لائبریریز تو ہیں ہی نہیں, ختم ہو گئی. اور چلڈرنس لائبریری خاص طور سے تو کہیں بہت ہی ریئر ہوگا کہ ہے. اور یہاں تک لائبریری مطلب یہ بھی کوئی چیز ایگزٹ کرتی ہے یہ دور میں تو مشکل ہے میرے خیال سے. جی انفارچونیٹلی کرتی تو ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اور اچھے اچھے اسکولز میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے اسکولز بنتے ہیں مگر ان میں انفراسٹرکچر میں لائبریری نہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے لیکن ریڈنگ پارٹ پہ بالکل نہیں ہو رہا ہے. بالکل بالکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس ہو رہا ہے, ریڈنگ پہ بالکل فوکس نہیں ہو رہا. اور ایکٹیویٹیز بھی اتنی اسٹرکچرڈ ہو گئی ہیں کہ مطلب بیچارے بچوں کے اوپر بوجھ کہ مطلب بس پیرنٹس بزی ہیں تو آپ جب تک گھر نہیں آ سکتے, جب تک پیرنٹس گھر نہیں آئے بالکل یہ ایکٹیویٹی کرو. ایگزیکٹلی میم, جہاں ریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم سنتے بھی ہیں کہ لوگ پڑھنے کے لیے کتنا آگے آگے رہتے تھے. بک ریڈنگ ایک ہابی ہوا کرتی تھی. بالکل. تو وہیں آج ریڈنگ کا امپورٹنس تو ختم ہو چکا ہے. اور اگر آج کے لوگوں کو کچھ کرانا ہے تو وہ کس طرح امپورٹنٹ ہے یا اس کا کچھ کیا فائدہ ہوگا اس چیز سے, وہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو ویورز ہیں انہیں آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی اور کس طرح بتائیں گی کہ ریڈنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز پہلے ہم لوگ کی جو شروعات ہوتی تھی وہ اخبار سے ہوتی تھی, مطلب پہلے کے لوگ بتاتے ہیں, لیکن اب تو موبائل سے, اب موبائل سے ہوتی ہے. اب تو ایپ سے ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور بس اتنا کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جی انفارچونیٹلی آئی تھنک ویورز کو بھی یہ بات سمجھنے
की ज़रूरत है कि रीडिंग हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद योर ब्रेन डेवलपमेंट. आपकी ब्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा है जो रीडिंग से ताल्लुक़ रखता है, और लैंग्वेजेस की रीडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन डेवलपमेंट. बिल्कुल. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग चाइल्ड्स ब्रेन to develop those connections which are produced when you are reading. It involves a lot of faculties. आप जब कोई चीज़ रीड करते हैं ना, तो हमें आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं, क्योंकि आसानी से हो जाती है ना. आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, आपकी ब्रेन उसे ट्रैक करिए, आंखों को ट्रैक करिए. मगर अगर यही सलाहियत आपसे इसमें से थोड़ी सी भी ले ली जाए तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो रीडिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट द ब्रेन, इट्स अ हायर फंक्शन ऑफ द ब्रेन. तो एक तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी ब्रेन को हायर फंक्शनिंग करवानी है, उसे नॉर्मल रखना है, उसे आगे प्रोग्रेसिव बनाना है, उसके लिए रीडिंग की स्किल बहुत ज़रूरी है. एंड रीडिंग आती है बच्चों को बचपने से. जैसे कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में भी लोग बहुत रीडिंग को इम्पोर्टेंस देते थे, तफरी में, फ्री टाइम में रीडिंग करते थे. इट यूज्ड टू बी अ हॉबी, अब नहीं है. इट्स वेरी सैड एंड आई थिंक इट शुड बी रिवाइव्ड, क्योंकि हमारे कल्चर में ये जो चीज़ मिसिंग है, इट इज़ ऑब्वियसली अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज ऑल्सो. आपकी पर्सनैलिटी में जो खोखलापना है ना जी, एक चीज़ होती है एकेडमिक रीडिंग और एक चीज़ होती है एजुकेशन. टू बी एजुकेटेड यू हैव टू बी वेल रेड. तो यू हैव टू हैव द नॉलेज जो आप एक्वायर करते हैं बुक्स से, एक्सपीरियंसेस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपने एक्सपीरियंस रियल लाइफ में नहीं किया होता है, मगर उसका एक्सपीरियंस आप किताबों के जरिए कर सकते हैं. जी, साथ ही वोकैबुलरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है. बेहद वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है. आपका कम्युनिकेशन जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी वो इम्प्रूव होता है. आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है. एंड इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज जब आप किसी पढ़े लिखे माहौल में लोगों के सामने जाके बात करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग से दिख के आती है. बिल्कुल. मैम एक चीज़ हम लोग जो देखते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम लोग ये सुनते हैं कि जो उलमाए कराम होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो मुतालिया बहुत करते हैं. एट द एज ऑफ मतलब 80-75 भी लोग मतलब पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे आलिम बेहतरीन होते हैं. लेकिन एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं कॉमन इंसान का ताल्लुक पढ़ाई लिखाई से या एक्सपेरिमेंट से सिर्फ एक एकेडमिक ईयर तक रहता है. फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन 12 तक. उसके बाद हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई से हमारा राब्ता ख़त्म हो चुका है. तो एक तो एनवायरनमेंट भी हमारे सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई करें या मतलब पढ़ाई से अंदाज में कि कुछ पढ़ें कोई बुक्स. लेकिन हम लोग ये देखते हैं बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो एक बेहतरीन रीडर भी रह चुके हैं. तो मतलब ये चीज़ को वापस से डेवलप करने के लिए या इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? एब्सोल्युटली साजिद, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है. रीडर्स बिकम लीडर्स डेफिनेटली, एंड गुड लीडर्स आर ऑलवेज गुड रीडर्स, क्योंकि उनके पास एक वैरायटी ऑफ एक्सपोजर होता है. बहुत अलग अलग चीज़ों ने लोगों की उन्होंने बातें गौर व फिक्र वाली, फ़िलॉसफी की, ओपिनियंस की उन्होंने किताबें पढ़ी हुई होती हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. एंड येस, इट इज़ अ कल्चर दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड इन आवर कम्युनिटीज़, बिकॉज अगर हम रीडिंग को वो इम्पोर्टेंस ना दें जो होती है तो यही फ़र्क बन जाता है. स्लोली इट बिकम्स अ डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर. तो आप कहीं भी जाएं, आपको पढ़ा लिखा इंसान, उसकी शख्सियत में और जो वेल रेड नहीं होते उनकी शख्सियत में बहुत फ़र्क आता है. और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम. सिर्फ बॉम्बे की या हैदराबाद की या गुजरात की प्रॉब्लम नहीं है. ये ओवरऑल इंडिया की प्रॉब्लम है कि इंडिया में बच्चे रीडिंग में बहुत पुअर हैं. दूसरी बात यह है कि महदूद हो गई है रीडिंग अपनी किताबों की हद तक, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं. बिल्कुल. तो बस बच्चों को उतना ही आता है जो उनकी किताब में है. यहीं पे मैम आपने जो पॉइंट कहा, मैं सोच रही थी कि जहाँ स्कूल्स में हम सब्जेक्ट्स पे इतना एम्फसाइज करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, तो वहीं अगर बात करें रीडिंग की, जिस तरह आपने कहा रीडर्स बिकम लीडर्स, तो हम रीडिंग को एज अ सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं या रीडिंग को इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बनाते ताकि हमारे बच्चे से जुड़ जाएं? बिल्कुल, अच्छे स्कूल्स करते हैं नीलम. जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और जो इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं. अब ये तो स्कूल लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे स्कूल में तो एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग एवरी मंडे करते हैं. पूरा स्कूल डज अ
एक एक्टिविटी है, उसे हम कहते हैं डियर एक्टिविटी, DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड. ओके. तो हम एक घंटी बजाते हैं स्पेशल, एवरीबडी नोज कि डियर एक्टिविटी शुरू हो गई. तो प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक जो काम कर रहे हैं सब छोड़ो जी और किताब लेके बैठो एंड रीड. ओके. तो बहुत अच्छा है ये. टीचर, आयाज, Everyone. सिक्योरिटी, एडमिन, कैशियर, सब लोग जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ो. ये मतलब आज भी कर रहे हैं इस चीज को? हम तो करते हैं अपने स्कूल में. अच्छे स्कूल्स करते हैं. बहुत अच्छी चीज है. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. तो इससे बच्चों को ये होता है कि जैसे अगर कोई बच्चे भी तो होशियार होते हैं ना, तो वो अक्सर मेरे कमरे से गुजरते हैं तो जाते हुए देखते गुजरते हैं कि ये रीड कर रही है कि ये नहीं कर रहे हमें बता रही है. तो हम लोग भी किताबें लेके बैठते हैं, बिकॉज बीइंग अ मॉडल, अ रोल मॉडल इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो हम अपनी आयाज को भी इस बहाने, जो हमारे यहाँ दीदीज होती हैं जो काम करती हैं, हम दीदियों को भी किताबें देकर बिठाते हैं. आपकी बात से मैं एक चीज अभी मेरे जहन में आ रही, शायद मैं गलत हूँ तो आप गाइड करिएगा. शायद आपकी बात से समझ में आ रहा है कि जब बच्चे घर में सबको मोबाइल देखते हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो भी यूज करते हैं. अगर सबको देखेंगे पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ने लगेंगे. बिल्कुल. तो उसमें गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की है. एब्सोल्युटली 110%. और शायद ये मैं पिछली एपिसोड में किसी में कह चुकी हूँ या मैं अपने किसी लेक्चर में बोल चुकी हूँ, घर में पढ़ता ही कौन है आजकल घर में पढ़ता ही कौन है. और इसीलिए टीचर्स के बच्चे आर गुड स्टूडेंट्स, इसलिए नहीं क्योंकि टीचर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, ताकि वो पढ़ते हुए नजर आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके घर में पढ़ाई का माहौल होता है. मैम, जिस तरह आपने कहा कि पढ़ाई का माहौल होता है, आपने डियर एक्टिविटी की बात की, तो ये तो एक स्कूल एक्टिविटी थी जी. अगर घर में पेरेंट्स अब ये चाहे कि उनके बच्चों में रीडिंग की आदत आए, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं कि बच्चे रीडिंग करना सीखे? सबसे पहले एक्टिविटी तो ये कर सकते हैं कि वो अपना मोबाइल छोड़ के और किसी वक्त किताब, अखबार, मैगजीन लेकर बैठें. बहुत फ़र्क पड़ता है माहौल से, और ये माहौल हमको सिर्फ हम अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं. तो इफ़ आई एम पेरेंट, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें कि हमारे घर, सबसे पहली बात तो ये कि हम किताबें ख़रीदें. राइट. आजकल तो कोई तो किताबें खरीदता ही नहीं, मतलब जो किताबें की दुकान थी वो भी बंद हो गई. तो सबसे पहली बात ये कि हम शौक से किताबें खरीदें, घर में किताबें आएं, हम बच्चों के साथ जाके किताबें खरीदें, ये भी एक एक्टिविटी है. राइट. तो फिर उसके बाद हम उसको खरीद के जब हम घर में अपने किताबें रखते हैं, जैसे उलमा के पास भी कितनी किताबें होती हैं, हम लोग देखते हैं. तो जब हम किताबें रखते हैं तो बच्चों को किताबों की वैल्यू समझ में आती है. बिल्कुल. और किताबें एक बार पढ़ने की नहीं होती, आप उसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आप बुक्स को यू कैन रीड देम अगेन. तो ये पेशेंस डेवलप करना किताबों को पढ़ने के लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने घर का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट करते हैं. राइट. तो यू गेट बुक्स. जब आपके बच्चे छोटे हों, आपका बेटा 6 महीने का है, आप अभी से उसके लिए किताबें खरीदना शुरू करिए और घर के अंदर वो कल्चर बनाइए, उसके साथ भी किताबें पढ़िए, अपनी भी किताबें रखिए. तो by 6 months of age I can start this. You can start when a baby is born. Okay. Yes. And मैगजीन्स लाइए, कॉमिक्स लाइए, वैरायटी लीजिए, होम डेकोरेशन की किताबें, कुकिंग बुक्स हैं, गाड़ियों की किताबें, बहुत वैरायटी है दुनिया में. टॉपिक बहुत गंभीर और बड़ा और सख्त है, मगर उसे बहुत ही आसानी से बच्चों की लेवल पर जाके उसे बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत खूबसूरत किताबें लिखी हैं. आपने भी कुछ है ना, लेट्स रीड करके कुछ आपकी? जी, वो तो फोनिक्स की रीडिंग किताब है, मगर दैट इज टू हेल्प यू टू रीड. मगर जब शुरुआत होती है ना, तो ऑब्वियसली हम 6 महीने के बच्चे से, 1 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रीड करेगा. तो जब हम किताबें खरीदते हैं तो हम उनके लिए रीड करें. वी रीड, जैसे आपने बोला था ना, पेरेंट्स बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते हैं या कोई किताबें पढ़ते हैं. तो हम लोग तो स्कूल में कोई नया भाई बहन पैदा हुआ, उसकी किताब है. आप पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी किताब है. बच्चे गाजर भिंडी नहीं खाते, उसकी किताब है. बच्चों को डर लगता है अंधेरे से, उसकी किताब है. ये जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस करते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उन सारी चीजों को वो इन बुक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. बुक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. और टीनेजर्स के लिए यू हैव मैगजीन्स. एक बहुत अच्छी रीडर्स डाइजेस्ट आती थी, उसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट होता था. तो रीडर्स डाइजेस्ट है, कॉमिक्स हैं, मैगजीन्स हैं बहुत सारी.
थोड़ी मैगजीन्स वाहियात हैं जिनकी इंफॉर्मेशन इज बेटर कि आप दूर ही रहें, बट अदरवाइज देयर आर सम वेरी गुड मैगजीन्स विद वेरी गुड कंटेंट. एक डायलॉग है ना, वो शायद हम लोग को डीमोटिवेट कर सकता है कि पढ़ने लिखने से क्या हुआ है किसी का, तो शायद इसलिए लोग नहीं माय गॉड, पढ़ने लिखने से ही होता है. किसने क्या कर लिया बोलते हैं ना, फला साहब तो बहुत पढ़ाई किए थे, तो लेकिन क्या कर लिया उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी पर्सनालिटी पढ़ाई के साथ साथ डेवलप नहीं हुई. अगर पर्सनालिटी वही जो हम बातें करते हैं ना, हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बात करी थी, कम्युनिकेशन, बात करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, वो सब चीजें भी पढ़ाई लिखाई के साथ जरूरी है. मैम टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये समझ गए होंगे कि रीडिंग जो हमने बहुत पीछे छोड़ दी है, इसे एक बार फिर से लाना ज़रूरी है. जिनके बच्चे छोटे हैं वो फिर से बेड टाइम स्टोरीज पढ़ सकते हैं. जो एडल्ट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी काफ़ी सारी नॉवेल्स है, बुक्स है, पढ़ सकते हैं. मैम थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी लीडर्स दे हैव टू बी रीडर्स. एब्सोल्युटली. थैंक यू मैम. तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा नाजरीन, ये रीडिंग का जो सफ़र है ये कोई ट्रेन नहीं है कि कोई स्टेशन पे जाकर रुक जाए और आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो हमें हयात दिया है इसमें हर वक्त हम लोगों को नॉलेज गेन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए. बल्कि एक हदीस भी हम लोग सुनते रहते हैं कि गेन नॉलेज फ्रॉम कैडल टू ग्रेव, मतलब माँ की आगोश से लेकर आप कब्र तक नॉलेज हासिल करते रहे. यानी एक खूबसूरत हदीस है मैम, बिल्कुल, जिसको हम लोग ने खाली सिर्फ हदीस को सुनने तक महदूद रखा है. ओके, तो ये एक खूबसूरत हदीस है और भी कई हदीस है कि अगर आपको पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े तो भी आप जाएं. तो इतना ज़्यादा फोकस जो है तो पढ़ाई के बारे में किया गया है, इतने सारे लोग हमें बताते हैं, तो शायद हमारा जो राब्ता टूट गया है अब हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे. यही इस प्रोग्राम का मकसद था. दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल में. बहुत शुक्रिया.